Hello students, I am Avantika from AVS Knowledge Station and they will start the black aeroplane, which is the second part of your chapter 3rd of your first flight book. This is written by Frederick Forsyth, who is a well-known British author known for his thriller stories. And as you will read further, you will be thrilled to know what happens in the end of the story. This deals with a mystery when the pilot is stuck in a storm. Okay, and this is also related to flying, and also the previous story that we did, his first flight, okay, which was about the young seagull, that also dealt with flying. So this is all about the courage and dealing with our fears. All right, so now we'll start reading. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. So, what is the time, students, here? Certainly, it is night time. है ना, रात हो रखी है, because it tells us that the moon was in the east. और stars क्या थे? Stars were shining in the clear sky. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. See, you can very well see the emphasis on this word clear, है ना? Clear sky, wasn't a cloud. So this is what a pilot needs, है ना? एक pilot को क्या चाहिए होता है when he's flying? A perfect weather. So that was there. And he also tells us that he was happy. Why he was happy? Because he was getting that perfect weather. All right, he was alone in his aircraft and he was above the sleeping countryside. Sleeping countryside means because it was night time, he could see the view of the agricultural lands or the rural side, है ना? जो rural areas हैं उसको हम countryside भी कह देते हैं. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. So here he tells us about his aircraft, and it was an old aircraft, okay, and it was a Dakota aeroplane, and he was flying over France. And where was he going? He was going to England. All right, I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. So he was really happy for another reason, because it was after some time, a long time, that we can say he was going to meet his फैमिली एंड वो उसका हॉलीडे था एक तरह से, ठीक है. ही वॉज गेटिंग सम टाइम टू स्पेंड विद हिज फैमिली. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 in the morning. So 1:30 in the morning actually means midnight, है ना? So but he says it was 1:30 in the morning. I should call Paris control soon, I thought, as I looked down past the nose of the aeroplane. ठीक है, nose of the aeroplane क्या होता है? See, if this is the aircraft and if the pilot is seated here, this would be the nose of the aeroplane. ठीक है, so while looking and concentrating, he thought of calling the Paris control. Why Paris control? Because it is the people in the control room who keep guiding the pilot. ठीक है, that is why he thought कि उसे भी Paris control को थोड़ी देर में कॉन्टैक्ट करना चाहिए. आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. तो जब उसने उस नोज ऑफ द एरोप्लेन से देखा, व्हाट कुड ही सी? ही कुड सी दैट द बिग सिटी विच इज पेरिस वाज जस्ट अप्रोचिंग. ठीक है, वो बिल्कुल आने ही वाली थी पेरिस सिटी. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, Paris control Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. ओवर. ठीक है, अब उसने ये सिग्नल, ये मैसेज दिया कंट्रोल रूम को. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली. ठीक है, इमीजिएटली का क्या मतलब है? उसको वेट नहीं करना पड़ा. इट वॉज जस्ट द नेक्स्ट मोमेंट दैट ही कुड हियर द वॉइस फ्रॉम द कंट्रोल रूम. DS088, आई कैन हियर यू. You ought to turn 12 degrees west now. DS088 over. ओके, तो अब उसे क्या इंस्ट्रक्शन मिला कि उसको कहाँ पे टर्न करना चाहिए? उसको टर्न करना चाहिए 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ. ठीक है, सो उसको जो डायरेक्शन मिला, ही सिंपली फॉलोड इट.
I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank. ठीक है, switched over मतलब he changed, he needed fuel और उसने जो last fuel tank बचा था उसको यूज करना स्टार्ट किया. And turned the Dakota 12 degrees west towards England. ऑलराइट, उसने फॉलो किया जो भी कंट्रोल रूम ने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए. I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. So बेटा इन लाइंस की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. ठीक है, दिस लाइन टेल्स अस कि वो कितना एक्साइटेड था. हाउ एक्साइटेड वॉज द पायलट टू स्पेंड सम गुड टाइम विद हिज फैमिली. ऑलराइट, तो वो ब्रेकफास्ट को इमेजिन कर रहा था कि मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे पहुंचूंगा. और अ बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट मीन्स जो उसका होम प्लेस थी, जो उसका हमेशा से तरीका रहा था खाने का. ठीक है, इंग्लैंड में जैसे भी बहुत एक रिच ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ही वॉज वेटिंग फॉर दैट. ठीक है, एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, मतलब अभी तक उसे बहुत ही कंफर्टेबल वो जर्नी लग रही थी. ओके, एंड you will tell me the significance of this phrase कि it was an easy flight. By the end of the chapter you will tell me that उसकी ये mentality, ये जो thought था, ये ठीक था या नहीं, whether the flight was really easy or not. Please put in your comments in the comments box that whether the flight of the pilot was an easy flight as he thought or not. Okay, now let us read the next paragraph. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. ठीक है, तो दैट मीन्स फ्लाई करते हुए पेरिस ऑलरेडी 150 किलोमीटर्स पीछे छोड़ चुका था वो पायलट. तभी ही सॉ समथिंग. व्हाट ही सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स. अब उसको क्या दिखे? स्टॉर्म. स्टॉर्म क्या होता है? तूफान, है ना? तूफान जैसे क्लाउड्स उसको दिखे. एंड दे वर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. अब देखिए, अभी तक उसने सोचा था इट्स एन ईजी फ्लाइट, क्लियर स्काई, ऑल दीज थिंग्स सोचा था ना. बट अब क्या हुआ? ही कुड सी ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स, बड़े बड़े तूफान आंधी वाले क्लाउड्स. ओके, और उसको कैसी लग रही थी? ही हैज कंपेयर्ड दोज स्टॉर्म क्लाउड्स विद ब्लैक माउंटेन्स. So I knew I could not fly up and over them. The moment he saw the clouds, students, जैसे ही उसने देखा वो समझ गया कि उनको क्रॉस करना is not easy at all. And one because वो storm clouds थे, और दूसरा reason I did not, what he tells us is I did not have the enough fuel to fly around them to north or south. He says कि अब इतना फ्यूल भी नहीं था उसके डकोटा में कि वो अपना पाथ डिविएट करके कहीं और जाए. गॉट दिस? तो अब थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन थी. आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. सो दिस इज द टाइम दैट ही वॉज अनेबल टू टेक एनी डिसीजन. ही फॉर वंस ही थॉट कि उसको पेरिस वापस जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्लैक माउंटेन्स को कैसे क्रॉस करेगा. एंड सेकेंड थॉट उसने क्या सोचा कि उसको घर जाना है, पेरिस तो बहुत दूर है ना. सो he should get home, and why he was eager to have that breakfast with his family. So what he decided, let us find out. I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. Can you imagine a pilot deciding to get into the storm? Yes, that is what he did. उसने वो रिस्क लिया. Inside the clouds everything was suddenly black. ये तो होना ही था, है ना? जब क्लाउड्स हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स, तो एवरीथिंग वाज ब्लैक. इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. ठीक है, इतना डार्क हो गया, इतना ज़्यादा वो हम कह सकते हैं स्टॉर्म था, क्लाउड्स इतने ब्लैक थे कि ही कुड नॉट सी एनीथिंग. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन देयर. एक तो पहले से स्टॉर्म और ऊपर से उसका एयरक्राफ्ट थोड़ा पुराना था बेटा, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टर्ब्यूलेंस हो रहा था इन हिज एरोप्लेन. आई लुक्ड एट द कंपास. वाई ही लुक्ड एट द कंपास? बिकॉज कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो डायरेक्शन बताता है ना. बहुत ही अपडेटेड कंपास होते हैं एयरक्राफ्ट्स में, बट वो भी किसी हेल्प का नहीं था उस टाइम. सी, आई कुडंट बिलीव
My eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. तो वो राउंड एंड राउंड किस लिए हो रहा था कंपस? कैन यू सी दिस? है ना? इसको क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है फिलहाल तो, ओनली ब्लैक. एंड कंपस भी डेड था. इट वुड नॉट वर्क. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू. आई ट्राइड द रेडियो. ठीक है, अब अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में हो, सो यू विल ट्राई ऑल मेथड्स कि किसी ना किसी तरह कुछ डायरेक्शन का तो पता चले. ऑल राइट, बट ना तो रेडियो काम कर रहा था, सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेड हो गए, कंपस वगैरह कुछ भी नहीं. पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? बट देयर वाज नो आंसर. इसीलिए बिगनिंग में हमें बताया गया कि पहले क्विकली रिप्लाई आ गया, और बट दिस टाइम देयर वाज नो आंसर बिकॉज द रेडियो वाज डेड टू. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. This is what is being shown in the picture. है ना? देख सकते हैं आप सब? कुछ भी नहीं है बाहर, ओनली ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स एंड एन एरोप्लेन एज वेल. तो तभी उसे दिखा बिल्कुल उसके काफ़ी पास एक और एरोप्लेन. ओके, अनदर एरोप्लेन. और उसका क्या फीचर्स बता रखे हैं? इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. ऐसा बहुत रेयर होता है कि लाइट्स ही ना ऑन हो एरोप्लेन की, बट इस एरोप्लेन की लाइट्स ऑन नहीं थी. I could see the pilot's face turn towards me. अब उसे उस एरोप्लेन के पायलट की शक्ल दिखी जो उसी को देख रही थी. ठीक है, नरेटर को देख रही थी. I was very glad to see another person. है ना, काफ़ी ऑब्वियस है. ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में, इफ़ यू फाइंड समवन, दैट इज़ अ रिलीफ इन इटसेल्फ. सो ही वॉज ग्लैड टू सी. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. ही कौन है यहाँ पे? ही इज़ द pilot of that black aeroplane. He lifted one hand and waved. मतलब उसने उसको देख लिया था. Follow me, he was saying. Follow me. He knows that I'm lost. I thought he is trying to help me. अब क्या हुआ? उसे लगा कि वो उसकी हेल्प करना चाह रहा है, बिकॉज ये कह रहे हैं हमको कि वो कंटिन्यूसली इसको कह रहा था पायलट को कि फॉलो मी फॉलो मी. ठीक है, तो इसको थोड़ा रिलीफ मिला. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. ठीक है, अब ये बता रहा है कि कैसे कैसे उस दूसरे एरोप्लेन ने धीरे धीरे टर्न किया, एक डायरेक्शन लिया नॉर्थ वाला, और इसकी डकोटा के आगे आगे वो एरोप्लेन गया, और इसके लिए ईजी हुआ टू फॉलो हिम. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. अब देखिए आप, इसे एक रिलीफ का साइन मिला बाय दैट एरोप्लेन. सो इसने उसको बिल्कुल ओबीडियंट चाइल्ड, बिल्कुल जो ऐसा अच्छा मैनरफुल बच्चा होता है उसकी तरह इसने उस दूसरे एरोप्लेन को फॉलो किया. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. ठीक है, तो अभी भी वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन इसके साथ सामने था. ठीक है, और ये फॉलो कर रहा था, बट क्लाउड्स भी थे अभी भी. ओके, now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. ठीक है, अब एक और सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी थी, थोड़ी प्रॉब्लमैटिक अभी भी थी, क्योंकि फ्यूल ख़त्म हो रहा था उसके डकोटा का. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. ठीक है, तो स्टॉर्म अभी तक गया नहीं था, एंड ही सेज कि जब इसको डर लगा दोबारा, व्हेन ही स्टार्टेड टू फील फ्राइटेंड एंड और थोड़ा स्ट्रेसफुल, तभी वो दूसरा एरोप्लेन, द ब्लैक एरोप्लेन, स्टार्टेड टू गो डाउन एंड ही ऑल्सो फॉलोड हिम. Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. ठीक है, now what happens? Suddenly जब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, he saw what? कि वो क्लाउड से बाहर आ चुका है और टू स्ट्रेट लाइन्स हैं लाइट्स की. दैट मीन्स वो कहाँ पे था? ही वॉज एट द रनवे, और वो सेफली एक एयरपोर्ट पे पहुंच चुका था, विच वॉज द ग्रेटेस्ट रिलीफ फॉर हिम. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. ठीक है, अभी कह रहे हैं कि
इसने देखा आसपास, पीछे भी टर्न किया कि वो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है, जिसको इसने अपना फ्रेंड कहा, ओके, बिकॉज ही हेल्प्ड हिम, ओके, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, उसे स्काई में कोई एरोप्लेन नहीं दिखा. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. तो ना तो वो स्काई में था बेटा, नीदर इट वॉज इन द स्काई नॉर इट वॉज ऑन द रनवे और एनीवेयर नियर द एयरपोर्ट. वो कहीं भी उसको वो ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखा. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. Okay, can you see this line that I was not sorry? What is this? Was not sorry. It is actually a phrase that tells us that he was rather happy. Was not sorry का मतलब होता है जिस चीज़ को करके आप प्राउड हो या खुश हो. तो वो किस चीज़ से खुश था? टू वर्क अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, क्योंकि उस ओल्ड डकोटा से उसे कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी अभी, इसलिए. एंड वेयर डिड ही गो? ही वेंट नियर द कंट्रोल टावर. कंट्रोल टावर के पास वो गया, जो एयरपोर्ट पे होता है ना कंट्रोल टावर, जहाँ से सब कुछ पता चलता है. तो ही वेंट देयर. I went and asked the woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. ठीक है, तो इसने हमें रीज़न बताया कि वो कंट्रोल टावर में जाके एक वुमन बैठी थी कंट्रोल सेंटर में, उससे उसने पूछा कि वो कौन से स्पेसिफिक एरिया में है, और दूसरे पायलट के बारे में इसने इंक्वायरी की. क्यों इंक्वायरी करी? बिकॉज ही वॉन्टेड टू से थैंक यू टू दैट पायलट. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. ठीक है, अब जब इसने ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछा इस लेडी से, तो दैट लेडी वॉज स्टार्टल्ड. वो थोड़ी सरप्राइज हुई और वो हंसी. अनदर एरोप्लेन up in the storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. ठीक है, तो अब उस लेडी ने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कंट्रोल सेंटर पे, उसने बोला, बहुत शौक के साथ बोला, ठीक है, कि कोई और एरोप्लेन था ही नहीं स्टॉर्म में स्पेशली, और इट वॉज ओनली योर एरोप्लेन दैट वॉज फ्लाइंग टुनाइट. पूरे रडार पे, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना पता लगाने के लिए, वहाँ पे कोई और एरोप्लेन था ही नहीं. और ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी बेटा, ये नहीं है कि उसे लगा या दिखा. नो, इट वॉज द फैक्ट्स दैट द लेडी वॉज गिविंग टू द पायलट. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? So you can see question mark है यहाँ पे सिर्फ. And this tells us that how the pilot was left confused. वो confused रहा ना, because उसको नहीं समझ आ रहा था that how did he land safely. वो कैसे आया बिना कंपस के, बिना रेडियो के, और फ्यूल भी ख़त्म होने वाला था. तो वो कौन पायलट था? ब्लैक एरोप्लेन भी इतना स्ट्रेंज, उसकी सिचुएशन भी इतनी स्ट्रेंज, और अब जो उसे पता चला दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रेंज. ओके, सो हेयर आवर चैप्टर एंड स्टूडेंट्स. है ना ये एक इंटरेस्टिंग, एक मिस्टीरियस चैप्टर. हाँ, व्हाट डू यू फील? व्हाट इट कुड हैव बीन? वो क्या चीज़ हो सकती है जिसने उसे सेफली वहाँ तक पहुँचा दिया एयरपोर्ट तक? व्हाट कुड इट बी? वॉज इट हिज इल्यूजन? इल्यूजन क्या होता है? जो चीज़ आपको लगती है बट शायद होती नहीं है, वो इल्यूजन होता है ना. ऐसा हो सकता है ना कि वो उसका इल्यूजन हो. Certainly it could be, क्योंकि अगर if there would have been an aeroplane, then the lady must have told him, no? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो लेडी के पास ही थी. ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक एरोप्लेन हो और उस लेडी को ना पता हो. यू अग्री विद मी, है ना? एंड ऑल्सो अगर दूसरा एरोप्लेन होता तो वो हाउ ही वॉज सो कॉन्फिडेंट इन द स्टॉर्म. ओके, सो यू मस्ट think about all the possible reasons of him landing safely. ठीक है, तो one reason is that could be an illusion for him, और सब कुछ खराब था फिर भी how did he land safely? So it could be कि he knew everything, he knew the path already. It was just the confusion, the illusion in his mind that made him doubtful on his own abilities, just like the previous chapter we did about young seagull, है ना? वो young seagull was also not ready to have faith in his capabilities. Similarly, we can say beta that over here as well, this pilot who knew about the path
about everything, lost faith in his own capabilities. So that is why he is just giving the credit of landing safely to this black aeroplane, which was just purely his imagination. That is possible, okay, and that is at least what I feel. You can tell me about your opinion, what it could be. All right. So if you think there is something else which you can think of about him landing safely, please let me know. Till then, study sincerely and stay safe.